So today's topic, how to solve numericals related to lens, और इसमें first about formula. In short, अगर last class आप लोगों ने अच्छा से किया है तो आज इतना problem आपको face नहीं होगा. Similar to spherical mirror formula, there is lens formula, and lens formula is 1 by V minus 1 by U is equals to 1 by F. Then magnification M is equals to V by U. मिरर में था माइनस V by U, यहाँ पे लेंस में M equals to V by U. Another formula of magnification M equals to H dash by H. तो आप चाहो तो what you can do, you can write H dash by H equals to V by U अगर आपको डायरेक्ट यूज करना है. Then formula number 4 is power. For power, P is equals to 1 by F in meters, or you can write 100 by F in centimeters. 100 by F in centimeters. Okay. So 1 by V minus 1 by U equals to 1 by F. M is equals to V by U. M is equals to H dash by H. And power P equals to 1 by F in meter and or 100 by F in centimeter. If I ask you what is the unit of power of lens? What is the unit of power of lens? Okay, diopter. So many of you have given the answer. Diopter denoted by capital D. Denoted by capital D. Okay. Then एक और formula about combined power. यहाँ मैं symbol अपने convenience के लिए, or you can also use this symbol PC. Combined power can be calculated by the formula P1 plus P2. In this way, you can add power of n number of lenses. Combined power. लेकिन जब भी आपको combined focal length calculate करना है तो डायरेक्ट F1 plus F2 आप यूज नहीं कर सकते. Combined power का फॉर्मूला है 1 by PC. Okay, combined power in meters is 1 by PC. या फिर एक और तरीका, लेकिन ये आपका सिलेबस में डायरेक्टली गिवन नहीं है, F1 into F2 by F1 plus F2. ओके, इसको अवॉइड करना, जस्ट मैंने डिफरेंशिएट करने के लिए बता दिया आपको. दैट बहुत लोगों को लगता है कि कंबाइंड पावर में क्या करना, उन लोग को फोकल लेंथ को प्लस करना है. तो देखो, कंबाइंड पावर कैलकुलेट करने के लिए फोकल लेंथ को आपको डायरेक्टली प्लस नहीं करना है. FC is equals to F1 into F2 by F1 plus F2. तो ये तो है फॉर्मूला. अब मैं साइन कन्वेंशन का अगर बात करूं तो आपको एक चीज पता अगर होगा तो इजी होगा, दैट रियल इमेजेस आर फॉर्म्ड behind the lens. Real images are formed behind the lens and virtual images are formed in front of lens. In front of lens. Virtual images are formed in front of lens. Okay. So अगर आप convex lens का numerical कर रहे हैं तो आपको U नेगेटिव लेना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V पॉजिटिव फॉर रियल इन्वर्टेड इमेजेस, V नेगेटिव फॉर वर्चुअल इरेक्ट इमेजेस. एंड कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव. कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड पावर इज ऑल्सो पॉजिटिव. Convex lens. When you are solving numericals related to concave lens,
U is negative, V is negative, F is negative, and P is negative. A concave lens always forms, it always forms virtual image. It always forms what kind of image? It is virtual image. So ये basic sign convention for convex lens and concave lens. If you want to take the screenshot, you can take the screenshot, because if you have any problem regarding formula and sign convention, तो आपको इस information का जरूरत पड़ेगा while solving numerical. And I am moving to another part. So I hope you have taken the screenshot. Okay. So हम लोगों ने discuss किया about lens, और अगर मैं आपको बात करूँ about magnification, M is negative for real inverted images. M is negative for real inverted images, and M is positive for virtual erect images. जैसे मिरर में था, सिमिलरली लेंस में मैग्निफिकेशन का साइन कन्वेंशन सिमिलर है. Then height of the object, H is always positive. H dash is negative for real inverted images, and H dash is positive for virtual erect images. It is positive for virtual erect images. So this is sign convention for height of the object and height of the image. Okay, आपको already पता है real image किधर form होता है lens में. Real image is formed on which part? In front or behind? If I ask you, real images are formed good behind the lens में, and virtual images are formed in front. Lens formula आप लोगों को याद हो गया, 1 by V minus 1 by U equals to 1 by F. So now you can start solving numerical. We can discuss that numericals one by one. 10 to 12 selected question है. अगर अब सभी वो numerical कर पाते हो अपना मेहनत से और थोड़ा hint से, that means आप capable हो high grade numerical करने के लिए. तो यहाँ पे एकदम high level question नहीं है, ये basic आपको numerical करना आता है कि नहीं वो आपको check करना है. और आपको अगर आता भी है तो आप आंसर तक पहुंच पाते हो कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, तो बिना कैलकुलेटर यूज किए हुए कोई और हेल्प नहीं लेना आपको. डायरेक्टली यू शुड ट्राई टू सॉल्व न्यूमेरिकल योरसेल्फ. कैलकुलेशन खुद करने का कोशिश करना सब कुछ. सो आई एम गोइंग टू शो यू द फर्स्ट क्वेश्चन, और क्या क्या प्रॉब्लम आएगा वो बताते जाऊंगा मैं थोड़ा question से related. This is the first question of today's class. आंसर मेरे पास है, आंसर आराम से आपको फाइंड आउट करना है, कोई जल्दी नहीं. आपके पास कोई सोर्स अवेलेबल है तब भी आंसर देखना नहीं है आपको. मैं आपको हिंट देता हूं and you just try to find out. A 2 centimeter tall object, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो जितना भी रे डायग्राम से होता है उसमें ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस से प्लेस करते हैं हम लोग. ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस. तो जब भी आप न्यूमेरिकल करो, मैंने आपको बताया लेंस या मिरर कौन सा है वो ऑलवेज फोकस करना, क्योंकि उसी के ऊपर पूरा साइन कन्वेंशन डिपेंड करता है. फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पॉजिटिव में लेंगे हम लोग. The distance of the object from the lens is 15 centimeter, and you are asked to calculate nature, position, size of the image. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया, अगर आप V कैलकुलेट कर लेते हो तो आप दो आंसर देने लायक हो जाते हो, पोजीशन एंड नेचर. V का आंसर अगर आपका पॉजिटिव आएगा लेंस में तो वो रियल इन्वर्टेड इंडिकेट करेगा और इट इज बिहाइंड द लेंस. और V का आंसर अगर नेगेटिव आता है तो वर्चुअल इरेक्ट एंड इट इज इन फ्रंट ऑफ द लेंस. ओके,
और आपका अगर रे डायग्राम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से क्लियर है तो आप पोजीशन वैसे भी बता सकते हो डिस्टेंस के साथ साथ, बिहाइंड, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एट फोकस, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, लाइक दैट। सो यहाँ आंसर आना भी स्टार्ट हो गया है और बहुत जल्दी आ रहा आंसर, करेक्ट आ रहा है बहुतों का। लेकिन मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा है उसमें मैग्निफिकेशन साइज ऑफ द इमेज, मैग्निफिकेशन भी पूछा है राजदीप, तो मैग्निफिकेशन भी बताना आपको। ओके, यू शुड ट्राई टू फाइंड आउट मैग्निफिकेशन आल्सो। चिराग करेक्ट है, चिराग, देन वान्या, वान्या आपने हाइट ऑफ द इमेज नहीं बताया। सो यू हैव टू फाइंड आउट v, और v का आपका आंसर आना चाहिए 30 सेंटीमीटर। v कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है 1 बाई v माइनस 1 बाई u इक्वल्स टू 1 बाई f। v आपका 30 आना चाहिए, उसके बाद मैग्निफिकेशन पूछा है तो कैलकुलेट करना ही चाहिए। मैग्निफिकेशन के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे v बाई यू, और आपका मैग्निफिकेशन का वैल्यू आना चाहिए -2। देन हाइट ऑफ द इमेज आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, h डैश बाई h, और हाइट ऑफ द इमेज आपका आना चाहिए -4 सेंटीमीटर। इफ यू आर गेटिंग दीज आंसर्स देन योर सॉल्यूशन इज परफेक्ट। और बहुतों ने करेक्ट आंसर दिया है, सो मेनी स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर। इसका मतलब लास्ट क्लास जो आपने किया है उससे आपको एक बेनिफिट हुआ है। ओके, सो ये कंटिन्यूअस मैंने इसलिए रखा लाइट का न्यूमेरिकल कि ये एक प्रॉब्लम बहुत स्टूडेंट फेस कर रहे थे, तो इस प्रॉब्लम का बेसिक सॉल्यूशन और तीनों ही क्लास रिकॉर्ड है, तो फ्यूचर में भी आपको रेफरेंस के लिए मिल जाएगी। कृतिका पूछ रही कि मैग्निफिकेशन -2 आने से 2 टाइम्स स्मॉलर बोल सकते हैं क्या? ओके, तो मैग्निफिकेशन -2 का मीनिंग बता देता हूं आपको। यहाँ माइनस साइन इंडिकेट करता है रियल इन्वर्टेड इमेज, और इस माइनस का साइज से कोई रिलेशन नहीं है। ये 2 इंडिकेट क्या करेगा? 2 टाइम्स मैग्निफाइड, 2 टाइम्स मैग्निफाइड, 2 इंडिकेट करेगा 2 टाइम्स मैग्निफाइड। ओके, तो कीर्ति अजित सरिया ने पूछा है, नाम थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू गॉट द आंसर। किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो नंबर 1 से रिलेटेड, इफ यू हैव एनी डाउट, और आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो मेजोरिटी को डाउट नहीं है, इसका मतलब सबको समझ में आ गया नंबर 1 का पैटर्न। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन। ये क्वेश्चन कॉन्केव लेंस से रिलेटेड है। मुझे आंसर एकदम इंस्टेंट नहीं चाहिए, आप आराम से सॉल्व करके आंसर देना, गेस नहीं करना है। A concave lens has a focal length of 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस का प्लस में लेना या माइनस में? वो नेगेटिव में। कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है और पावर भी नेगेटिव। At what distance should an object from the lens should be placed so that it forms an image 10 centimeter from the lens? So आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे आपको बोला है कि कॉन्केव लेंस है और इमेज डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है, आपको ठीक से सुनना। क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया हुआ है, क्वेश्चन में ये नहीं बोला हुआ आपको कि जो इमेज फॉर्म होगा वो इन फ्रंट होगा, बिहाइंड होगा, रियल होगा, वर्चुअल होगा। तो कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, ये आपको पता होना होगा। एंड वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस, इन फ्रंट ऑफ द लेंस। तो आपको पता होना चाहिए कि कॉन्केव लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज के लिए v आप पॉजिटिव लोगे या नेगेटिव लोगे? तो आंसर है नेगेटिव, तो v -10 है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बात ये था कि आपको इमेज का नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था,
पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं था, आपको सिर्फ f और v बता दिया गया, उससे u निकालना है और कैलकुलेशन तो इजी है। इसका फॉर्मूला है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। ये फॉर्मूला से आपको u कैलकुलेट करना है और आपका आंसर जो है वो आना चाहिए। बहुतों ने आंसर दिया है एंड बहुतों ने क्या, सबने ही ऑलमोस्ट करेक्ट आंसर ही दिया है, लेकिन किसी किसी ने मैग्निफिकेशन कैलकुलेशन में गड़बड़ किया है। मैग्निफिकेशन, ओके, मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है आपको। u का आंसर जो है वो आपका आना चाहिए -30। तो आप अपने कॉलर या अपना प्राउड फील कर सकते हो कि दूसरा क्वेश्चन आपसे हो गया है। एंड मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करने के लिए m इक्वल्स टू v/u फॉर्मूला यूज करना आपको, और मैग्निफिकेशन का आंसर आना चाहिए 1/3 और 0.33। और ये वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव में आना चाहिए, रियल इमेज में नेगेटिव में आता है। आंसर अपने आप प्रॉपर साइन में आएगा व्हाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल। So m equals to 1/3. Okay, so this one has been done. Tanish Jain ने m 5/3 something लिखा है, it will be 1/3. It will be 1/3. Okay, so कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में आपको नेचर ऑफ द इमेज नहीं दिया हुआ रहेगा, आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है। From the lens or from some other thing you can get that information. You can get that information. Okay, most of the students got correct answer. अच्छा है कि आप लोगों का एक प्रैक्टिस हो रहा है एंड इफ यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल में कंफर्ट होने से फिजिक्स में चैप्टर तो कंफर्टेबल लगता है। अगर ये कॉन्वेक्स लेंस होता तो आपको दो केस में इस न्यूमेरिकल को करना होता, रियल के लिए और वर्चुअल के लिए, दोनों के लिए करना होता। Now I am moving to another question, question number 3. Question number 3. Now calculate the distance at which an object should be placed in front of a convex lens of focal length 10 centimeter. तो focal length आपको बता दिया कितना, कॉन्वेक्स लेंस है तो 10 सेंटीमीटर प्लस में ही लेंगे हम लोग। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। टू ऑब्टेन एन इमेज डबल इट्स साइज, तो m के बारे में आपको बता दिया डबल, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आपको पता होगा कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म बोथ रियल इमेज विच इज मैग्निफाइड एंड वर्चुअल इमेज विच इज मैग्निफाइड। कॉन्वेक्स लेंस का केस में अगर आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो, इफ यू प्लेस द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपको रियल एंड इन्वर्टेड इमेज जो कि डबल हो सकता है ऐसा मिलना पॉसिबल है। और कॉन्वेक्स लेंस में, मिरर में भी ऐसा ही सब हम लोगों ने किया था। कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखोगे तब भी आपको मैग्निफाइड इमेज मिल सकता है, और वो मैग्निफाइड इमेज वर्चुअल इमेज होगा। यू कैन गेट 2 times मैग्निफाइड इमेज। तो आप रियल के लिए m का वैल्यू लोगे -2 और वर्चुअल के लिए m का वैल्यू लोगे आप 2। फोकल लेंथ दोनों में पॉजिटिव लेना बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस, और आपको f और m से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है रियल के लिए, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वर्चुअल के लिए। ओके, तो ये टेक्निक ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं। f और m से आप u कैसे कैलकुलेट करते हो। ओके, f और m से u कैसे कैलकुलेट करते हो, इट हैज बीन टॉट। तो पहले सिंपल तरीका आपको m इक्वल्स टू v/u, यहाँ पे -2 इज इक्वल्स टू v/u एंड यू विल गेट v इक्वल्स टू -2u। इसको रिलेशन 1 बना लो और बाद में आप लेंस फॉर्मूला यूज करो। 1/v - 1/u इज इक्वल्स टू 1/f।
यूज दिस लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे v के जगह पे 1/-2u -1/u और फोकल लेंथ आपको पता है 1/10। अब इसको आपको सॉल्व करके u फाइंड आउट करना है। एंड सिमिलर टेक्निक से आप सेकेंड पार्ट कर सकते हो। सिमिलर टेक्निक से आप सेकेंड पार्ट कर सकते हो। आपका दोनों आंसर चाहिए एक साथ। दोनों आंसर एक साथ राजदीप ने दिया है। राजदीप हैज गिवन द बोथ द आंसर। रियल के लिए क्या और वर्चुअल के लिए क्या होगा, लेकिन राजदीप का आंसर मेरे पास जो आंसर है उसके साथ मैच नहीं हो रहा है। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दैट। रियल इमेज के लिए और वर्चुअल इमेज के लिए, रियल और वर्चुअल के लिए u का वैल्यू निकालना है। आप देखो ना इस डायग्राम में, देखो ये फोकल लेंथ दिया हुआ 10, तो रियल के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 से ज्यादा आएगा और वर्चुअल के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 से कम आएगा। रियल के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 से ज्यादा, तो आपका पहला आंसर मैं रियल के लिए कंसीडर करूंगा। सांची ने u इक्वल्स टू -5 लिखा है रियल के लिए, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फोकल लेंथ अगर 10 है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो 10 से ज्यादा आएगा ना, 10 से ज्यादा। हर्ष अग्रवाल, आपका आंसर रियल के लिए करेक्ट है, लेकिन वर्चुअल के लिए रॉन्ग हो गया। वर्चुअल में देखो, मैं आपको जो बेसिक समझा रहा हूँ डायग्राम वाला, वो आपको समझना पड़ेगा। ओके, वर्चुअल के लिए बाद में आपने करेक्शन किया है, नाउ इट इज करेक्ट। एंड कंजना, योर आंसर्स आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, गुड। दिशा, वर्चुअल और रियल दोनों के लिए करेक्ट आंसर है। सांची, नाउ योर आंसर्स आर करेक्ट। आपका u का आंसर जो है, फर्स्ट केस में u का आंसर आना चाहिए -15 सेंटीमीटर और सेकंड केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका आना चाहिए -5 सेंटीमीटर सेकंड केस में। सो अगर आपका ये आंसर्स आ रहा है तो कोई टेंशन नहीं है आपको, क्योंकि ये न्यूमेरिकल होने के बाद मुझे लगता है आप मैक्सिमम न्यूमेरिकल अब कर पाओगे। Adrika, your first answer should be, for real it should be -15 and for virtual it should be -5. ओके, कैलकुलेशन में हो सकता है किसी किसी को दिक्कत हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आपसे ये सब सम अब नहीं होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है then you will be able to solve these numericals easily. थोड़ा मैथमेटिक्स अपना ठीक करना होगा। So we have discussed third question and I am moving to another one. अगर आप लोग में से कोई भी स्टूडेंट ये समझ रहा है कि ये तो इजी सम है, मुझसे तो हो जाता है, तो सचिन तेंदुलकर जब 16 ईयर का था तब उसको क्रिकेट खेलना तो आता ही था, तो वो जब तक 36-37 का हुआ तब भी वो क्रिकेट तो रोज प्रैक्टिस करता था ना। आने से होता नहीं है, यू हैव टू प्रैक्टिस। आज विराट कोहली क्या क्रिकेट प्रैक्टिस करना छोड़ देगा कि मुझे तो आता है, हर शॉट आता है, हर तरह का हम शॉट खेल सकता है? देयर इज नीड ऑफ प्रैक्टिस। और जो स्टूडेंट ऐसा खुद को समझता है ये सब तो हम कर लेगा, एग्जाम में उन्हीं स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। वो लोग प्रैक्टिस से बाहर रहते हैं और जब न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल में वो लोग सिली मिस्टेक बोलते हैं, बाद में एग्जाम से बाहर निकलते। वो सिली नहीं, वो बेवकूफी वाला मिस्टेक होता है क्योंकि प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। आप इजी को प्रैक्टिस करोगे देन ओनली योर प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। बाद में टफ तभी कर पाओगे। नंबर 4 में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जस्ट रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मेरे तरफ से आपको कोई डायरेक्ट हिंट नहीं है। यू हैव टू रीड क्वेश्चन योरसेल्फ, थिंक योरसेल्फ एंड यू विल हैव टू सॉल्व इट। जब 2-3 का आंसर आ जाएगा उसके बाद मैं बताऊंगा आपको हिंट। 2-3 स्टूडेंट को सॉल्व करना है। नंबर 4, थिंक अबाउट द क्वेश्चन। बार बार फोकस, मैंने बोला कि लेंस कौन सा, ऑलवेज ध्यान देना। आपको वी निकालना है इसमें, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज।
वी से आप नेचर भी बता सकते हो और पोजीशन भी बता सकते हो। नंबर 4, Rajdeep, your answer is not correct. अभी तक किसी का भी आंसर मिला नहीं है। हर्ष अग्रवाल, डिवाइड करके बताओ। वान्या, फ्रैक्शन में आंसर मत देना, डिवाइड करके देना है। वान्या का आंसर रॉन्ग है, अद्वित का भी रॉन्ग है। हर्ष अग्रवाल सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया, हर्ष अग्रवाल। देन चिराग, योर आंसर इज करेक्ट। मनस्वी सोनी, योर आंसर इज रॉन्ग। अद्रिका का आंसर भी रॉन्ग है आई थिंक। डिवाइड करो, फ्रैक्शन में आंसर देके फायदा नहीं। अद्रिका का करेक्ट हो सकता है, जस्ट डिवाइड इट। कंजना करेक्ट है और तनिष जैन, तो बहुतों ने करेक्ट आंसर दे दिया। अब मैं हिंट बता सकता हूं जिन जिन से नहीं हुआ। An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens. Object distance आपको बता दिया गया 50, तो आपको तो साइन कन्वेंशन यूज करना है -50। And focal length of concave lens is negative. Focal length given है -30 लेना है और आपको v फाइंड आउट करना है। आपको फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करना होगा 1/v - 1/u is equals to 1/f। 1/v - 1/u equals to 1/f। आप लेंस फॉर्मूला यूज करोगे एंड यू विल फाइंड आउट v। आपका v का आंसर आना चाहिए यहाँ 18.66, वो भी माइनस में 18.66, आप 67 लिख सकते हो। ओके, v equals to -18.66 और 67 एंड नेचर नेगेटिव है, इसीलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट, या फिर कॉन्केव लेंस ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट इमेज ही फॉर्म करता है। सो यू कैन इजीली नो अबाउट दैट। द कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स व्हाट काइंड ऑफ इमेज? Virtual and erect image. So number 4, I hope you have understood, all of you. Number 4. Okay, moving to the next question. Number 5, this one. इसमें पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला भी इसमें अप्लाई होगा। Number 5. A concave lens of focal length 25 centimeter, a convex lens of focal length 20 centimeter. कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ को हम लोग f1 ले लेते हैं, कॉन्केव लेंस होने से नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ को हम लोग f2 ले लेते हैं, फोकल लेंथ पॉजिटिव। These are placed in contact, दोनों लेंस को कॉन्टेक्ट में प्लेस कर दिया। What is the power of this combination? तो हम लोग को f1 से p1 फाइंड आउट करना है, f2 से p2, फिर कंबाइंड पावर निकाल लेंगे। तो p1 is equals to 1/f1 in meter and this is 100/f in centimeter। तो f1 लिखेंगे यहाँ in centimeter। So 100 by focal length in centimeter, so 100 by -25 centimeter and it will be -4 diopter। Similarly हम लोग P2 फाइंड आउट करेंगे as 1/f2 in meter, so it is 100 by f2 in centimeter, तो डायरेक्ट सेंटीमीटर में लिख रहा हूं मैं 20 सेंटीमीटर, प्लस में लिखना है क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, एंड यू विल गेट +5 डायोप्टर। पावर में प्लस माइनस साइन लिखना चाहिए। फिर आपको पूछा व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, कंबाइंड पावर आपको पूछा गया है। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट व्हाट कंबाइंड पावर। तो यहाँ पे बहुतों ने आंसर दे दिया है ऑलरेडी। दीक्षा का आंसर रॉन्ग है, हर्ष अग्रवाल, देन कंजना, तनिष्क, चिराग, श्रव्या, दीक्षा, आदित्य मजुमदार। सो बहुतों ने आंसर दिया है। अब
combined power PC equals to P1 plus P2. P1 का वैल्यू +4 डायोप्टर और P1 is -4 diopter. P1 is -4 diopter and P2 is +5 diopter. +5 diopter. So it will be +1 diopter और 1 diopter भी simply लिख सकते हैं हम लोग. फिर आपको पूछा कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड कॉम्बिनेशन. तो मैंने आपको पहले भी बताया, आपको कंबाइंड फोकल लेंथ अगर निकालना है तो आप PC इक्वल्स टू 1/FC वाला फॉर्मूला यूज करना. सो यहाँ पे FC इज इक्वल्स टू 1/PC. FC in meter is 1/PC. So 1/PC combined power plus 1 diopter. तो 1/1 is 1. तो 1 जो है मीटर में आपको लिखना है. आंसर इज 1 मीटर. Answer is 1 meter. Okay. So now you can easily find out what combined focal length and combined power. बस मेरा ये बात फोकस रखना, आप लोग ध्यान देना है कि combined focal length निकालने के लिए 1/PC आपको यूज करना क्लास 10 लेवल में. और स्कूल में अगर डिस्कशन हो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला FC इक्वल्स टू F1 into F2 by F1 plus F2, तो आप इसको यूज कर सकते हो डायरेक्टली. ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर सॉल्यूशन. लास्ट वाला का आंसर कीर्ति, इट वाज 18 पॉइंट. इट इज 18.7. ओके, 18.75 था लास्ट वाला का आंसर. जस्ट मैंने गलती से 18.66 या 67 समथिंग लिखा था. इट वाज 18.75. ओके, सो यहाँ एक करेक्शन कर देता हूं मैं. नंबर 4 का आंसर जो है 18.75 सेंटीमीटर. नाउ आई एम मूविंग टू अनदर क्वेश्चन. तो ये इंपॉर्टेंट पैटर्न था अभी जो हम लोगों ने डिस्कस किया नंबर 5 में. नाउ नंबर 6, यहाँ पे मेरा हिंट का पहले आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. आप ट्राई करो. 2-3 स्टूडेंट आंसर देने के बाद मैं हिंट बताऊंगा उन लोगों को जिनसे सॉल्व नहीं होगा. जस्ट यू ट्राई टू सॉल्व नंबर 6. नंबर 6 सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया क्या देना? चिराग अग्रवाल ने आंसर दिया है नंबर 6 का, और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं है. चिराग, कौन सा नंबर का आंसर दिया आपने? ओके, हर्ष अग्रवाल. डिवाइड करो, डिवाइड करके आंसर दो. हर्ष अग्रवाल, आपको फोकल लेंथ निकालना है और फोकल लेंथ से आपका डिसीजन होगा कि वो लेंस कौन सा है. दोनों आंसर साथ में देना है. वान्या ने इनकम्प्लीट आंसर दिया है. फोकल लेंथ के साथ लेंस का नाम भी बताना है. लेंस का नाम हर्ष अग्रवाल का रॉन्ग है. तनिष्क जैन, वान्या जैन का आंसर करेक्ट है लेकिन इनकम्प्लीट है. आपको लेंस का नाम भी बताना है. तनिष्क का आंसर करेक्ट है और चिराग का आंसर भी करेक्ट है. दिशा, योर आंसर इज रॉन्ग. दिशा, योर आंसर इज रॉन्ग. An object is placed 50 centimeter. Okay, Mudit Sharma, correct answer. An object is placed 50 centimeter from a lens produces a virtual image. So object distance जो है, it is -50 centimeter. And produces a virtual image at a distance of 10 centimeter in front of the lens.
वर्चुअल इमेज का इमेज डिस्टेंस नेगेटिव में लेना होता है -10 since the image is virtual. U और V से आपको F कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला सिंपल है, लेंस फॉर्मूला 1/v minus 1/u equals to 1/f. यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड आउट F. एंड F का जो आंसर आपका आना चाहिए वो नेगेटिव में आना चाहिए 12.5 सेंटीमीटर. और F जब नेगेटिव आएगा, फोकल लेंथ नेगेटिव, दैट मीन्स F नेगेटिव आने से कौन सा लेंस? इट इज कॉनकेव लेंस, एंड कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. ये आएगा आपका कॉनकेव लेंस, एंड कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस. डाइवर्जिंग लेंस. ओके कीर्ति, U का साइन समझ में नहीं आया. U का साइन, U तो ऑलवेज नेगेटिव होता है. U ऑलवेज नेगेटिव होता है, चाहे मिरर चाहे लेंस. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑलवेज इंसिडेंट रे का ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रखते हैं. thereby. So number 6, I hope you have completed number 6 comfortably. complete हो गया होगा number 6. Okay, so moving to the next question. Number 7. I think you will find this one as the simplest one. Number 7. जल्दी से आंसर बताओ आप लोग सॉल्व करके, फिर मैं हिंट बताता हूं उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. यू जस्ट ट्राई नंबर 7. जल्दी से आंसर बताना. आप चाहो तो सेंटीमीटर में भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें. 0.5 मीटर है यहाँ पे. क्वेश्चन पढ़ते वक्त ऑलवेज इस पे फोकस करना आप. 0.5 मीटर 50 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर 20 सेंटीमीटर. कॉनकेव लेंस है वो ध्यान रखना आप. सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया -50, एंड इमेज सॉरी फोकल लेंथ. कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है. ओके, तनिष्क डिवाइड करना होगा. चिराग यूनिट के साथ आंसर देना इस बार, यूनिट के साथ. सो फोकल लेंथ हियर कॉनकेव लेंस -20. इट इज -20. और आपको फाइंड आउट करना है नेचर और पोजीशन के लिए V. नेचर और पोजीशन के लिए V. राजदीप, तनिष्क, चिराग, हर्ष अग्रवाल, आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन थोड़ा वेरिएशन मिल रहा है आफ्टर डेसिमल, उतना चलेगा. कंजना, योर आंसर इज नॉट करेक्ट. वान्या का आंसर भी करेक्ट नहीं है. मुदित शर्मा करेक्ट आंसर. सो आपको U और F से V फाइंड आउट करना है. U और F से आपको V फाइंड आउट करना है. सो द फॉर्मूला तो ऑलरेडी पता आपको, 1/V minus 1/U is equals to 1/F. लेंस फॉर्मूला यूज करना आपको. एंड V का आंसर आपका आना चाहिए माइनस में आना चाहिए. कॉनकेव लेंस है, ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज. एंड 14.3 अप्रॉक्स या 28 मोर प्रॉपरली 14.28 सेंटीमीटर. 14.28 और 14.3 सेंटीमीटर आप लिख सकते हो. एंड मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन करेक्ट आंसर. लास्ट में चिराग, अद्रिका, अद्वित, कीर्ति एंड दिशा का आंसर रॉन्ग है. मुदित शर्मा करेक्ट आंसर है. सो नंबर 7, आई होप यू गॉट द आंसर. और अभी आपको एकदम पैटर्न क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आने लग जाता है कि क्या करना है. लेकिन ये लेवल 1 क्वेश्चंस है. ये एकदम ऐसा क्वेश्चंस नहीं कि आपको रीड करके पता ही नहीं चले. तो उस लेवल का क्वेश्चन करने के लिए आपको बेसिक्स तो क्लियर होना पड़ेगा. और बहुत स्टूडेंट को यहाँ पर भी प्रॉब्लम है.
सो इसीलिए इन क्लासेस का अरेंजमेंट किया गया है। और ये जो क्लास है इनको रिकॉर्ड करने का पर्पस भी यही है कि बाद में किसी को प्रॉब्लम होता है बेसिक में तो उसको रिकॉर्डिंग से ही समझना होगा। ओके, नंबर 8, an object 5 centimeter high is placed at a distance of 30 centimeter from a convex lens of focal length 15 centimeter, position और nature। इसके लिए टाइम लिमिट मैक्सिमम 5 मिनट्स, उससे ज्यादा आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए नहीं लेना चाहिए। आपको फाइंड आउट करना है पोजीशन और नेचर ऑफ इमेज। ओके, लेकिन इसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो आप चाहो तो इसको यूज कर सकते हो फॉर फाइंडिंग द हाइट ऑफ द इमेज। और मैं सजेस्ट करूंगा जब क्वेश्चन में ये गिवन और ऐसा क्वेश्चन हो आप हाइट ऑफ द इमेज कैलकुलेट कर ही लेना। तो नंबर 8, यू थिंक अबाउट नंबर 8। नंबर 8 में आप मुझे मैग्निफिकेशन भी बता देना। जब इतना कैलकुलेट करोगे आप एम भी बता दो, एच डैश भी बता दो और वी भी बता दो, तीनों इंफॉर्मेशन दे दो। ओके, सॉल्यूशन करना इज मोर इम्पोर्टेंट है। आपको हर बार लगेगा कि ये तो इजी है, अब जल्दी बाकी स्टूडेंट से कंपेयर करके आपका आंसर पहले आता है कि नहीं वो देखो। राजदीप का रॉन्ग है। तनिष्क योर आंसर इज करेक्ट। वान्या का करेक्ट आंसर, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज, ओके इट इज ऑल्सो करेक्ट। वान्या ने सबसे पहले कंप्लीट और करेक्ट आंसर दिया है। ओके, सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको गिवन है। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको दिया 5 सेंटीमीटर एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, तो ये -30 लेंगे हम लोग। फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव। अब आपको ये इंफॉर्मेशन से v फाइंड आउट करना है, देन m फाइंड आउट करना है, v के बाद आपको m फाइंड आउट करना होगा और m फाइंड आउट करने के बाद आपको h डैश फाइंड आउट करना है। सो योर आंसर फॉर v शुड बी पॉजिटिव में आना चाहिए, 30 सेंटीमीटर रियल इमेज होगा, रियल इन्वर्टेड इमेज। मैग्निफिकेशन आपका आना चाहिए -1 रियल इमेज के लिए एंड हाइट ऑफ द इमेज -5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज -5 सेंटीमीटर। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन करेक्ट आंसर। तो आंसर ये जो चैट बॉक्स देख के भी अच्छा लग रहा है अभी कि अब स्टूडेंट का मैक्सिमम का आंसर करेक्ट हो रहा है। हाँ, हर्ष अग्रवाल ने इस बार गड़बड़ किया है, but most of the student Disha, Chirag, Sumitra, then Kanjana correct answer दिया recently और बहुतों ने दिया है। So moving to another question, I hope you have understood। आज का क्लास करके at least major tension नहीं होगा आप लोगों को, basics clear होगा। बहुत स्टूडेंट को ऐसा भी लग रहा था कि सर ये क्लास क्यों, वाई इट इज रिक्वायर्ड, हम लोगों को तो आता ही है। लेकिन हमारा थ्योरी कुछ अलग है, आपको जो चीज आता है ना उसको बहुत अच्छा से आना चाहिए। हर्ष खेमका पूछ रहा है कि m इक्वल्स टू 2, नहीं m इक्वल्स टू 2 कैसे आएगा, u -30 और v 30 है तो m तो 2 आ ही नहीं सकता। m इक्वल्स टू v बाई u, ओके -1 आएगा। Now I'm moving to another question, number 9। Now number 9, चलो इसमें हम लोग कंपटीशन खेलते हैं। इधर कौन पहले आंसर देता है, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, किसको पहले समझ में आता है और कौन पहले आंसर तक पहुंच पाता है। आई एम वेटिंग हियर, कौन पहले आंसर दे रहा है इसका, नंबर 9 का। हमको डायरेक्टली आपको सिर्फ एक ही आंसर देना, हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज डायरेक्टली कौन बता सकता है जल्दी कैलकुलेट करके। कंपटीशन समझो इसको, थोड़ा प्रेशर लो। बहुत लोग बोलते हैं प्रेशर नहीं लेना चाहिए, थोड़ा तो लेना होगा। डायमंड प्रेशर से ही बना है।
गुड। हर्ष अग्रवाल सबसे फास्ट है, he got the answer, हर्ष अग्रवाल। देन करण का आंसर रॉन्ग है, करण छाजर। तनिष्क का भी आंसर रॉन्ग है, तनिष्क का आंसर रॉन्ग है। हर्ष अग्रवाल ने सबसे पहले आंसर दिया है। तनिष्क, योर आंसर इज रॉन्ग। ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर हाई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर। आपको हाइट ऑफ द इमेज बताना था। आप लोगों का मेजोरिटी का आंसर रॉन्ग आ रहा, मैंने मैग्निफिकेशन पूछा ही नहीं। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर is placed at 15 सेंटीमीटर in front of a concave lens. So u जो है वो हम लोग लेंगे -15, u हम लोग को -15 लेना है। कॉन्केव लेंस ऑफ पावर, पावर जो है -10d, इससे हम लोगों को फोकल लेंथ निकालना, लेकिन वो फोकल लेंथ आपको सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी सब क्वांटिटी सेंटीमीटर में गिवन है। तनिष्क गॉट द आंसर, चिराग गॉट द आंसर, दिशा गॉट द आंसर। आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना है। कीर्ति गॉट द आंसर, मनस्वी का आंसर रॉन्ग है। मनस्वी का जो स्टार्टिंग का परफॉर्मेंस था फर्स्ट 2-3 मंथ, अभी धीरे धीरे डाउन क्यों हो रहा है पता नहीं, बट देयर इज सम डिफरेंस। मुदित शर्मा, आप टफ सम मांग रहे थे मुझे, और ये तो इजी वाला ही है। अश्मित, योर आंसर इज करेक्ट। तो मेजोरिटी स्टूडेंट सेम ही मिस्टेक कर रहा है। वाई दे आर गेटिंग 8 सेंटीमीटर, क्योंकि मिस्टेक सबका सेम ही होना चाहिए। और ये अपना नाम करेक्शन कर लो, ठीक है। क्लास से फिर बाहर होगा, आज मैं इतना स्ट्रिक्ट नहीं हूं, लेकिन प्रॉब्लम हो सकता है। कंजनाब, योर आंसर इज करेक्ट। सो आपको पावर से फोकल लेंथ, पावर से फोकल लेंथ P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स, इन मीटर्स। सो F इक्वल्स टू 1/p, मीटर में आंसर आएगा। 1/p इज व्हाट, 1/-10। तो आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपको 0.1। सो -0.1 मीटर यानी -10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ -10 सेंटीमीटर लेके आपको सॉल्यूशन करना है। Svetlana, Rajdeep got the answer and Shravya also got the answer. Height of the image आपका पॉजिटिव में आना चाहिए, नेगेटिव वो भी आपको पता चल जाएगा। कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज, और वर्चुअल इमेज होने से आपको V जो है वो ऑलवेज नेगेटिव आना पड़ेगा, वर्चुअल के लिए नेगेटिव आना पड़ेगा। हाइट ऑफ द इमेज, कृष्णा, योर आंसर इज रॉन्ग। आपको अब फोकल लेंथ पता चल गया, तो आपको क्या करना है, 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f से आपको फोकल लेंथ सॉरी आपको v कैलकुलेट करना है। v कैलकुलेट करने के बाद आपको m इक्वल्स टू v/u, m इक्वल्स टू v/u यूज करना फॉर्मूला, एंड देन m इक्वल्स टू h'/h। तो ये वाला न्यूमेरिकल में ऑलमोस्ट सभी फॉर्मूला यूज हो रहा है, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट h', और वो h' का वैल्यू आपका आना चाहिए वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो है वो पॉजिटिव में आएगा, बाय मिस्टेक मैंने नेगेटिव बोला था आई थिंक। ये वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है, तो हाइट ऑफ द इमेज पॉजिटिव में आना होगा, एंड रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड, रियल इमेजेस आर इन्वर्टेड। कृष्णा, आंसर रॉन्ग है, आपका आंसर आना चाहिए 1.6 सेंटीमीटर। यू शुड गेट 1.6 सेंटीमीटर आपका आंसर होना चाहिए।
ओके, सो आई होप यू हैव गॉट द आंसर। ज्यादातर को आंसर का पता चल गया होगा, मैच हो गया होगा। आई एम मूविंग टू नेक्स्ट टू क्वेश्चंस। 3 और है क्वेश्चन। नेक्स्ट टू 1-1 मिनट का है, लेकिन ये पैटर्न बहुतों को यहाँ भी दिक्कत होता है, इसीलिए क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस और पावर गिवन है। तो आपको पावर बता दिया P, पावर कितना +4D, और आपको बोल रहा फोकल लेंथ कैलकुलेट करना। तो P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर्स। सो मीटर में F इक्वल्स टू 1/P हो जाएगा। तो यहाँ फोकल लेंथ आपको समझना पड़ेगा मीटर में ही है। तो आपको अगर 1/P मतलब 1/+4D, तो 1/4 यानी 0.25 मीटर होगा, और आप 25 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ओके, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना कोई जरूरी नहीं है, आप चाहो तो कर सकते हो। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट फोकल लेंथ फ्रॉम पावर। यू कैन कैलकुलेट फोकल लेंथ फ्रॉम पावर। सिंपल है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और नेक्स्ट में आपको फोकल लेंथ से पावर कैलकुलेट करना है। फोकल लेंथ से पावर, फोकल लेंथ कौन सा लेंस है उस पर ध्यान देना होगा। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, और आपको कैलकुलेट करने बोला पावर। फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, ध्यान रखना। तो P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, सो इट विल बी इक्वल्स टू 100/f इन सेंटीमीटर। 100/f इन सेंटीमीटर। आप चाहो तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करके डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो। सो इट इज 100/20 सेंटीमीटर। सो आपको ये मिलेगा +5 डायोप्टर, +5 डायोप्टर। ओके, +5 diopter. So in this way, use by the use of focal length you can calculate what power, और formula क्या है, P equals to 1/f in meter। सिंपल टेक्निक है। और आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ आपको कोई भी हिंट नहीं दिया जाएगा नेक्स्ट 2-3 मिनट्स, और आपको अटेंडेंस भी मार्क करना है, और इस क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है। आपको पावर ऑफ द लेंस कैलकुलेट करना है, और क्वेश्चन पढ़ो और क्या कैलकुलेशन करना होगा, यू विल बी एबल टू नो। यू कैन मार्क अटेंडेंस एंड थिंक अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन में दिया कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो यहाँ पे इमेज डिस्टेंस गिवन आपको, रियल इन्वर्टेड इमेज बता दिया गया, कॉन्वेक्स लेंस रियल इन्वर्टेड इमेज। देन where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object। अगर इमेज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा और रियल भी होगा, तो आपको m बता दिया गया -1। फिर आपको v बता दिया गया ऑलरेडी, रियल इमेज के लिए v पॉजिटिव होता है, v 50 सेंटीमीटर। तो आपको u कैलकुलेट करना है, where is the needle placed in front of the convex lens, और आपको पावर कैलकुलेट करने बोला गया है। आप पावर तब कैलकुलेट कर सकते हो जब आप u और v से f कैलकुलेट करोगे। f कैलकुलेट करने के लिए आपको 1/v - 1/u इक्वल्स टू 1/f लेंस फॉर्मूला यूज करना है। तो आप f कैलकुलेट कर सकते हो, और f कैलकुलेशन, फोकल लेंथ कैलकुलेशन करने के बाद यू कैन इजीली कैलकुलेट पावर P इक्वल्स टू 1/f इन मीटर, या फिर 100/f इन सेंटीमीटर। 100/f इन सेंटीमीटर। अगर आपका फोकल लेंथ वहां सेंटीमीटर में कैलकुलेट कर रहा हो तो आप सेंटीमीटर से कर सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। सो आपका फोकल लेंथ का आंसर क्या आ रहा है, अभी मैं चैट बॉक्स देखूंगा। फोकल लेंथ का आंसर क्या आ रहा है आपका, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में आएगा मोस्ट प्रोबेबली, और फोकल लेंथ करेक्ट है दिशा का, बहुत अद्भुत। देन प्रणति, तनिष्क, चिराग। सो
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आना चाहिए -50, नेगेटिव में आना पड़ेगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकल लेंथ आपका कैलकुलेट करने के बाद ये कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव में आना पड़ेगा 25 सेंटीमीटर, और पावर तो कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव में होगा +4 डायोप्टर। ओके, +4 डायोप्टर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा आज का क्लास। और अब ये बेसिक न्यूमेरिकल का और क्लासेस नहीं होगा। अब आपको जब भी जरूरत पड़ेगा ये रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखना होगा, इसका लिंक भी आपको कल तक मिल जाएगा। और कभी भी बेसिक न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम होता है, यू विल हैव टू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो आज के लिए क्लास ओवर है। यू जस्ट मार्क योर अटेंडेंस एंड यू कैन लीव द क्लास।